So let me start again, children. So last class we have discussed the introduction of the chapter Principle of Inheritance and Variation, and we discussed the key words homozygous, heterozygous, phenotype, genotype, allele, monohybrid and dihybrid. Today we'll discuss some more key points, and these key points are autosomes, heterosomes. Let me first tell you what are autosomes and heterosomes. See, in a cell, inside the nucleus, the chromosomes are present, and these chromosomes in any individual are of two types, that is autosome and heterosome. So what are autosomes? You can note down, children. The autosomes are those chromosomes which determine the somatic character. So it determines the somatic character. Somatic character means body character, that is the character that defines the structure and function of different parts of the body. Okay. Now come to heterosome. Now in heterosome, these are the chromosomes which determines the sex of an individual. Okay. So in all sexually reproducing organisms, two types of chromosomes are present, that is autosome and heterosome. Autosome determines the somatic character or body character, that is responsible for determining the structure and function of different parts of the body, and heterosome are the sex chromosomes which determines the sex of the individual. So this, why it is known as hetero? Hetero means different. Hetero means different. So in different sex, so sex may be male or female. So suppose say take human being. In human being, how many chromosomes are there? There are 46 chromosomes. So out of 46 chromosomes, 44 autosomes are present and 2 heterosome or sex chromosomes are present. 2 sex chromosomes, and these sex chromosomes are different in different sex. So in case of male, the sex chromosomes are XY, and in female, the sex chromosomes are XX. So since these chromosomes are different in different sex, so it is known as heterosome. Okay? So I think it is clear to you. Now let us discuss the next key term. Euploidy and aneuploidy. Euploidy and aneuploidy. So what are euploidy?
You know, children, in diploid organisms, suppose say the organism can be of two types, haploid and diploid. Okay, so the haploid organisms are having the haploid set of chromosome. The ploidy of chromosome is n. It is n. In diploid organism, it is 2n. Okay. Now, these organisms can be euploidy. Diploid organism can be euploidy and aneuploid. So euploidy means what? What is the normal set of chromosome? 2n. So if normal set of chromosome, to this normal set of chromosome, few more set of chromosomes are added or removed, then that is known as euploidy. That means this can be 3n, 4n, 5n, like this. Okay. So it is the addition or deletion of a set of chromosome to the normal set. So what is the normal set in diploid organism? It is 2n. Okay. So now coming to the aneuploidy. So in aneuploidy, the diploid organism, it is having 2n chromosome. So if there is a change in number of chromosome within the set of normal set of chromosome, का मतलब है कि 2n जो नॉर्मल सेट है उसमें से मान लो एक एडिशन हो गया, या फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं इस तरह. सो यहाँ 2n + 1 हुआ, या फिर 2n + 2 हुआ, 2n - 1 हुआ, या फिर 2n - 2 हुआ. तो ये क्या हुआ, आपका नॉर्मल सेट में से, नॉर्मल सेट जो क्रोमोसोम है डिप्लॉइड है, उसमें से आपका एक या दो क्रोमोसोम डिलीट या एडिशन हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, euploidy and aneuploidy. So if you have any doubt, you can ask me, I will clarify your doubt. Yes, children? Yes? मैम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा मैम? Set of means in diploid, suppose say you take human being, 46 is the normal set of chromosome. So it is the 2n. Okay? So 2n is the normal set of chromosome in diploid organism. In haploid organism, what is the normal set? N is the set of chromosome. That is, or you can say the karyotype. Karyotype वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी आपको karyotype समझ में नहीं आएगा, तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे. So please have a look on this, and if you have any doubt, you can ask me. कोई डाउट है? मैम नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम से डिफर क्यों चाहिए, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल सेट तो is due to abnormality during cell division. सेल डिवीजन के दौरान कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकता है या फिर म्यूटेशन हो सकता है. ठीक है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी, दीज आर ओनली की टर्म्स. मैं की टर्म्स आपको समझा रही हूँ, आगे जाकर पूरा ये फेनोमेना हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो यू डोंट वरी फॉर दैट. ओके, सो शैल आई कंटिन्यू? मैम क्या हम यूप्लॉइडी को पॉलीप्लॉइडी बोल सकते हैं? यूप्लॉइडी में से ये जो है आपका 3n से लेकर 5n तक, 5n 6n, उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. अगर 2n हो जाता है तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी नहीं बोलेंगे. सो 2n कैन बी n ऑल्सो, सो दैट विल बी हैप्लॉइड. ओके, वो हैप्लॉइडी हो जाएगा. और 3n के आगे जितने सारे हैं उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे. इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, सो यू डोंट वरी. ओके,
Shall I proceed? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is heterogamety and homogamety. 12 number, heterogamety and homogamety. Okay, so here the individuals are called homogametic or heterogametic. So मान लो एक इंडिविजुअल, जैसे you take a human being, okay? In human being, you take a male and female. ये भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द की टर्म्स, आपको की टर्म्स पढ़ा रही हूँ ताकि हम जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मुझे फिर से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सो इसका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ओके, सो मेल में क्या होता है, आपका 44 क्रोमोसोम्स प्लस XY, फीमेल में क्या है 44 प्लस XX। ओके ओके, मेल जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, सो इट कैन प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दैट इज 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y, ठीक है? फीमेल कितने तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज 22 प्लस X, ऑल द गैमेट विल बी 22 प्लस X, ठीक है? ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों, सो यू डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग द की टर्म्स, मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेल इंडिविजुअल है, ये 2 तरह का गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। सो द मेल ह्यूमन बीइंग इज हेटेरोगैमेटिक एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग इज होमोगैमेटिक। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Shall I proceed? Yes, ma'am. नेक्स्ट हम जाएंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ओके, देखो बच्चों, हम आपको जीनोटाइप फिनोटाइप जब पढ़ाए थे तब हम आपको बताए थे कि फिनोटाइप इज द फिजिकल एक्सप्रेशन, दैट इज एक्सटर्नली क्या अपीयर होता है, एक इंडिविजुअल किस तरह अपीयर होता है, उसको कहा जाता है फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट और जेनेटिक मेकअप। सो कोई इंडिविजुअल में अगर मान लो पी प्लांट ही हम ले लेते हैं, आप क्लास 10th में पढ़े हो, तो अभी मैं फिलहाल आपको हर चीज में यही एग्जाम्पल दूंगी, और जब हम मेन टॉपिक शुरू करेंगे तब मैं इंडिविजुअल एग्जाम्पल दूंगी। तो कोई प्लांट है, पी प्लांट है, जिसमें कि बाहर से वो टॉल दिख रहा है, तो ये इसका फिनोटाइप जीनोटाइप 2 तरह है। फिनोटाइप क्या होगा? टॉल होगा, ठीक है? बट इसका जीनोटाइप क्या है बच्चों? जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें बाहर से टॉल क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि द टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट, दैट मीन्स व्हेन the 2 different allele are present, you can note down children, when 2 different allele for a character are present, then one allele is expressed physically, that is called dominant trait, and the character which is suppressed is called recessive trait। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या है आपका? व्हाट इज द कैरेक्टर? कैरेक्टर इज
हाइट, हाइट का दो एलील है, एक है टॉल, एक है शॉर्ट या ड्वार्फ हम बोल सकते हैं। तो इसमें टॉल है डोमिनेंट कैरेक्टर, बिकॉज टॉल is expressed, so that's why phenotypically the phenotype of the individual is tall, और जो small t है हमने जो लिखा है that is for the shortness या फिर dwarfness के लिए हमने ये small t लिखा। वो कैरेक्टर एक्सटर्नली अपीयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिसेसिव है। सो हियर कैपिटल T is dominant and small t is recessive. So I think it is clear to you the character when two allele of a character are present in an individual, different allele होना चाहिए, then the allele which is expressed phenotypically, phenotypically जो express होता है उसको हम बोलेंगे dominant, और जो सप्रेस हो जाता है हम उसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। क्लियर चिल्ड्रेन? यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट, हाइब्रिड तो आप जानते हो बच्चों, हाइब्रिड के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। क्लास दैट इज चैप्टर 2 में हम हाइब्रिड के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे एक इंडिविजुअल में कैपिटल टी है, दूसरे इंडिविजुअल में स्मॉल टी है, इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, एंड दिस इज द हाइब्रिड। ओके, द हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल्स, हेटेरोजाइगस हम आपको बताए हैं, heterozygote individuals are known as hybrid. Okay, so next term is hybrid. Hybrid means the individual which carries two different allele for a character. Two different allele for a character. For example, capital T, small t. अगर एक कैरेक्टर के लिए ये हाइब्रिड है तो हम उसको मोनोहाइब्रिड बोलेंगे, दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है तो डाई हाइब्रिड बोलेंगे, तीन कैरेक्टर के लिए ट्राई हाइब्रिड, उससे ज्यादा पॉली हाइब्रिड हम बोलेंगे। तो इसके बारे में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का ये हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। सो आई एम अगेन टेलिंग यू बच्चों, आप घबराओ मत, मैं आपको सिर्फ की टर्म्स बता रही हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट है पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर बच्चों, हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें काफी सारे क्रॉस करेंगे, जैसे इंडिविजुअल के बीच में हम क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, सेल्फ ब्रीडिंग करेंगे, इनब्रीडिंग करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो जीनोटाइप है, हम उसको एक चार्ट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह एक चार्ट होता है, ठीक है, उस चार्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पर सपोज से हमने इंडिविजुअल लिया, अगेन आई विल टेक कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी लिया। तो ये जो कैपिटल टी जिसके पास है वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी, जो इसके पास जो स्मॉल टी वाला इंडिविजुअल है वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा स्मॉल टी। अभी ये जो इंडिविजुअल होंगे ये चार ऑफस्प्रिंग होंगे, इनके चार तरह के ऑफस्प्रिंग होंगे, 4 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, वी कैन नॉट से दैट 4 ही ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग होंगे। तो इसमें क्या होगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ जो इंडिविजुअल हुए ये क्या 4 तरह के हुए? नहीं, एक ही तरह के इंडिविजुअल हुए, ठीक है। 4 तरह का हो सकते हैं अगर हम 2 पेरेंट को मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, हमने इंडिविजुअल का जो ऑफस्प्रिंग का
जीनोटाइप को ग्राफिकली हमने एक चार्ट में रिप्रेजेंट किया और ये चार्ट को कहा जाता है पनेट स्क्वायर। इज इट क्लियर? Is it clear, Yes, ma'am. children? Okay. So while you are not answering, children, you just mute your mic. Unnecessary sounds are coming in between. Okay. So shall I proceed? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The next is locus. Next one is locus. So what is locus, children? Locus means, suppose this is the chromosome. These are the, you know that the chromosomes are always present in pairs and the chromosome bears the genes. So the location of the particular gene is on the chromosome is called locus. ठीक है, एक पर्टिकुलर जीन का जो पोजीशन होता है क्रोमोसोम के ऊपर उसको कहा जाता है लोकस। ओके, क्लियर चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next come to homologous. Homologous chromosomes. What are homologous chromosomes? See children, every individual is having pair of chromosome. Take the case of human being. Human being में 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स है। ठीक है, so ये जो 23 पेयर्स है, the 23 chromosome comes from the mother and 23 chromosome comes from the father. Every individual, हर एक इंडिविजुअल के पास जितने क्रोमोसोम होते हैं उसमें से आधा 50% क्रोमोसोम पेरेंट मदर से आता है, 50% क्रोमोसोम फादर से आता है। ठीक है, तो जैसे क्रोमोसोम का नंबरिंग ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस, ऐसे क्रोमोसोम का नंबरिंग होता है। तो उस क्रोमोसोम का जो पेरेंट, जैसे मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम एंड फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम, ठीक है, मदर का एंड फादर का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, सपोज से आई एम टेकिंग द एग्जांपल। सो इसमें जो ये जो क्रोमोसोम का पेयरिंग है इसको कहा जाता है होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो जीन होता है यहाँ पर भी वही जीन होता है, बट एलील में बी डिफरेंट, एलील डिफरेंट हो सकता है। अब यू नो दैट द जीन रेगुलेट्स द कैरेक्टर, तो यहाँ जो कैरेक्टर यानी जो जीन है यहाँ भी वही जीन, फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 का इस पोजीशन में जो जीन है हम पहले देखेंगे, तो मदर का भी उसी जगह पर सेम जीन इज प्रेजेंट, यानी सेम कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला जीन प्रेजेंट है, बट द एलील में भी डिफरेंट, एलील अलग हो सकता है। ठीक है, ये दोनों का एलील अलग हो सकता है या फिर सेम हो सकता है, वी कैंट से। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So these are the some of the key terms which I wanted to discuss before discussing the main topics of the chapter. So children, please go through this. I think you have noted down everything, whatever I have taught to you. So let us start the chapter now. So it starts with Mendel's experiment. It starts with Mendel's experiment. So Mendel, as I said, Mendel was an Austrian monk.
He was born in 1822 and you know monk means पता है ना आपको? जो मंदिर में पूजा करते हैं. So but he was a good observer of nature. नेचर को वो हमेशा ऑब्जर्व करते थे एंड बहुत सारे प्लांट का वैरायटी देखा उन्होंने, इतना सारा वेरिएशन क्यों है. फिर जो प्लांट है जैसे पी प्लांट हम ले लो, लाथिरस ओडोडाटस, ये सब प्लांट को उन्होंने ऑब्जर्व करके देखा कि पेरेंट प्लांट जैसे होता है उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों होता है. फिर उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए एंड देन ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट. सो ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट. ओके, सो he did his experiment on pea plant. Its scientific name is Pisum sativa. Okay, so scientific name, how to write, you know. So this is the generic name, this is specific name. Generic name should start with capital letters, specific letters, specific terms should start with small letter and both should be underlined or italicized. Okay, italics में लिखेंगे या फिर हम उसको separately underline करेंगे. So whenever you are writing any scientific name, children, you have to follow this. Now, why he selected pea plant for his experiment? What is the reason? क्या reason था जिसके लिए उन्होंने pea plant को select किया? So reasons for selecting pea plant for the experiment. सबसे पहले है कि देखो कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं बच्चों, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमको बहुत सारे उसका जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी को टेस्ट करना है, प्रोजेनी को चेक करना है. तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन. शॉर्ट लाइफ स्पैन सबसे पहला रीजन था कि पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पैन था. ये फ्यू वीक्स टू 1 or 2 months तक होता है इसका लाइफ स्पैन. इसीलिए उसका जो जितने सारे जेनरेशन वो स्टडी कर पाएंगे वो कर सकते थे. अगर मान लो एक बैनियन ट्री को ले लेते तो क्या होता? हाँ, बैनियन ट्री का प्रोजेनी आते आते हमारे पता नहीं कितने जनरेशन चले जाते, तो उसको हम कभी एक्सपेरिमेंट के रूप में नहीं ले सकते. सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन. तो ये एक रीजन है कि उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है. नेक्स्ट है इट कैन बी ग्रोन easily even in a pot. इसको हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं. इवन एक पॉट में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर पॉट में हम ग्रो करते हैं तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर और उसको ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा. ओके, द नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया था कि उन्होंने इसमें फ्यू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखा. उन्होंने इट हैज फ्यू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. मैं आपको बताऊंगी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है. उन्होंने जितना प्रोजेनी देखा बच्चों, उस प्रोजेनी में उन्होंने देखा कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अल्टरनेटिव कैरेक्टर. जैसे मैंने बताया हाइट का टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर का हम ले लेंगे पर्पल एंड व्हाइट. ठीक है, उसी तरह उन्होंने 7 ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नोटिस किया. तो मान लो अगर ज्यादा कैरेक्टर होता, बहुत ज्यादा कैरेक्टर होता, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स या 40-50 कैरेक्टर्स होता, या फिर बहुत कम कैरेक्टर होता जैसे एक कैरेक्टर होता, तो शायद वो अपने कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाते. अगर ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता तो क्या होता? अगर पेरेंट्स ज्यादा कैरेक्टर में डिफर कर जाते तो जो प्रोजेनी आते
तो वेराइटी ज्यादा हो जाता और उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता उसका स्टडी करने में, उसका ऑब्जर्वेशन में, और उनका कंक्लूजन मिलने में भी डिफिकल्टी आ जाता। इसीलिए उसमें few contrasting character and that too 7 observable contrasting characters। इसमें 7 observable contrasting character उन्होंने देखा जो कि उनके लिए बहुत इजी था। मान लो एक या दो कैरेक्टर होता, हम सोचे कि दूसरी साइड में the other side of this one, अगर एक या दो कैरेक्टर होता तो उसमें क्या होता, इधर मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस होता, उसके आगे और क्रॉस नहीं हो पाता, तो उसमें भी कंक्लूजन कोई मींस एक कंक्रीट कंक्लूजन might have not been received by him. So that's why these are the reason due to which he selected the pea plant for his experiment. Okay, so for today this much only, children. Please go through the key terms I have given you, and this is one of the most important question that comes in the exam. Why Pisum sativum was selected by Mendel for his experiment. Then in next class we'll discuss what were the 7 observable characters, 7 contrasting characters क्या थे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो थैंक यू चिल्ड्रन फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास as I said I'll be discussing the contrasting characters and their inheritance. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.